Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Today we are going to cover the second part of software quality assurance lecture, which is related to the software testing. Today we are going to talk about the testing strategies and different testing techniques, different types of testing techniques that are available in software houses in the field of software engineering. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let us discuss about what is testing. Software testing is normally part of the software quality assurance process. Initially, it was individually software testing, but it has become a complete field and complete domain. So, what is testing? Testing is a process of finding differences between the specified, यानी कि expected, एंड ऑब्जर्व जो कि ऑब्जर्व किए हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम बिहेवियर। स्पेसिफाइड मीन्स जो कि हमें बनाने से पहले जो है हमने सोचा था कि ये चीज़ सॉफ्टवेयर को इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से रिएक्ट करेगा, और ऑब्जर्व एग्जिस्टिंग सिस्टम बिहेवियर, और जो भी बनने के बाद जो है जो इस तरह वो बिहेव कर रहा है वो दोनों को जो है वो कंपेयर करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस कि वो एग्जैक्टली इस तरह से बिहेव कर रहा है जिस तरह से हम चाहते थे, स्पेसिफाई किया था, या उससे अलग बिहेव कर रहा है। दिस इज़ द main definition of software testing. The goal of the software testing is to design different test cases that will systematically find defects, जो कि उसमें errors और defects find करने, और aim is to break the system, make it fail, कि उसको जो सिस्टम को ब्रेक करना है उसको फेल करना है। क्यों फेल करना है? जानबूझ के, ताकि उसमें फ्लॉज ढूंढ सकें। क्योंकि अभी हम सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद वी आर टेस्टिंग दैट सॉफ्टवेयर, बट व्हेन इट गोज टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, गोज टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, it is going to run in the practical environment at the client side, those the system should not have flaws or should not break. So over here we try to use as much as test the system in order to break the system to find out the flaws. It is usually done by the developers that were not involved in the system implementation. Developers over here that are called SQA people who are not involved in the system implementation. It is to test a system effectively and must have a detailed understanding of the whole system. It will be tested by the people who have a detailed understanding of the whole system. It is not a job of novices. Novices is called a person who is inexperienced, or new, or in that field or situation, doesn't know anything about that experience, or who is completely new to the system, जिसको कुछ पता ही नहीं होगा उसको टेस्ट क्या करेगा। So this is the responsibility of the experienced people. It is impossible to completely test a non-trivial system often deployed without being completely tested. यानी कि it is not impossible to completely, it is not possible to completely test a system, क्योंकि जितना भी हम उसमें से टेस्ट करके चेक करके डिलीवर करें उसमें एरर्स और बग्स आते ही हैं। एंड द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को तो वो ठीक ठाक टेस्ट करके जो है वो सेल करते हैं, डिलीवर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें एरर्स और डिफेक्ट्स आते हैं जो कि वो अब अपडेट्स वगैरह सेंड करते हैं, जो कि दैट आर अपडेटेड ऑन द सिस्टम। सिस्टम्स ऑफन डिप्लॉय विदाउट बीइंग कम्प्लीटली टेस्टेड। कह रहा है कि सिस्टम ऑफन जो है वो क्लाइंट को डिप्लॉय किए जाते हैं, उसको कम्प्लीटली टेस्ट नहीं किया जाता। हु टेस्ट द सॉफ्टवेयर? The developer who understands the system but will test gently and is driven by the delivery. मतलब डेवलपर जो सिस्टम बनाता है वो उसको सिस्टम को टेस्ट करेगा, लेकिन वो इतना रिगरसली टेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ही विल थिंक अबाउट द डिलीवरी ऑफ द सिस्टम कि ये कंप्लीट हो ताकि डिलीवर हो सके। एंड इट इज़ टेस्टेड आल्सो बाय इंडिपेंडेंट टेस्टर who must learn about the system but will attempt to break it and is driven by the quality. कि वो क्वालिटी के हिसाब से उसे इंटीग्रेशन में चेक करेगा, उसमें जानबूझ के गलत इनपुट देगा उसमें, और ज़्यादा जो है वो हैवी टास्क उसको देगा, वो वट एवर दैट डिफरेंट टेस्ट दैट अवेलेबल इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर that we have discussed in the last lecture of the different standard, ISO 9000 standards, ISO 6 sigma standard। तो वो इंडिपेंडेंट यूज़र होगा जिसने डेवलप नहीं किया हुआ होता, बल्कि वो टेस्टर होता है। और देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हु आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने आपको एक SQA के हवाले से कहा था, क्योंकि ऐसे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हाउसेज ढूंढे जो कि सिर्फ SQA की फील्ड में काम करते हैं।
So testing is comprised of like major two activities: verification and validation. Verification is the process of making sure that we have built the product right. It means its stated requirements. Most of the testing workflow is targeted at doing verification. ठीक है कि हमने जो है वो सही प्रोडक्ट बनाई है, मतलब प्रोडक्ट जो बनाई है वो सही बनाई है जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है. एंड वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी हैव बिल्ट द राइट प्रोडक्ट दैट इज इट फिट्स फॉर द पर्पस. एक्सेप्टेंस टेस्टर्स डील मेनली विद वैलिडेशन. तो वेरिफिकेशन वेरीफाई किससे करेंगे? किसी एग्जिस्टिंग प्रूफ से करेंगे, किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे. यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट सही बनी है. वैलिडेशन क्या होगी कि क्या वो जो पर्पस है दैट इज फॉर विच द क्लाइंट हैज पुट मनी इनटू दैट प्रोजेक्ट, ये वो पर्पस फुलफिल कर रही है कि नहीं फुलफिल कर रही, दैट इज वैलिडेशन. हाँ भाई वैलिड. टेस्टिंग वेरीफाइज द रिजल्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय टेस्टिंग ईच बिल्ड एज वेल एज फाइनल वर्जन ऑफ द सिस्टम by planning the tests required for each iteration. यानी कि टेस्टिंग जो होगा वो साइमल्टेनियसली जो है वो हर बिल्ड के हिसाब से वो चेक होती रहेगी और हर इटरेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर इटरेशन के हवाले से चेक होती रहेगी, टेस्ट होते रहेंगे. डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द टेस्ट बाय क्रिएटिंग टेस्ट केसेस दैट स्पेसिफाई व्हाट टू टेस्ट. मुख्तलिफ टेस्ट केसेस, टेस्ट के सिनेरियोज, टेस्ट प्रोसीजर्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू टेस्ट. टेस्ट कंपोनेंट्स टू ऑटोमेट द टेस्टिंग इफ पॉसिबल. तो टेस्ट केसेस बनाएंगे, टेस्ट प्रोसीजर्स बनेंगे और टेस्ट कंपोनेंट्स बनेंगे. हु आर द पीपल एंड आर्टिफैक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ द टेस्टिंग? देयर आर टेस्ट इंजीनियर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ राइटिंग टेस्ट मॉडल, राइटिंग द टेस्ट केसेस, टेस्ट प्रोसीजर्स, टेस्ट प्लान एंड टेस्ट इवोल्यूशन. And the component engineer who are responsible for test component, who have designed the components. Integration testers or system tester will be responsible for finding the errors and defects. What are the test cases? Specifies one way of testing the system, what to test with which input or result under the which conditions. कि एक टेस्ट केस सिनेरियो डिज़ाइन होगा कि कौन सा इनपुट होगा, कौन सा आउटपुट होना चाहिए और इस सिस्टम को किस तरह से टेस्ट. जैसे ये डेटा डाल के देखो, फिर इसको इस तरह से प्रोसेस करो, फिर इसको इस तरह से प्रोसेस करो, फिर देखो उसके क्या रिजल्ट आता है. टेस्ट मॉडल, अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, test procedures and test components that describes how executable components are tested by integration and system test. तो टेस्ट मॉडल जो है पूरे के पूरा एक कलेक्शन होता है टेस्ट केसेस का, प्रोसीजर्स का एंड टेस्ट कंपोनेंट्स का, जो कि एक बिल्ड को जो है एग्जीक्यूटेबल कंपोनेंट्स का जो या इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्ट के हवाले से एक पूरा कंप्लीट कंपाइल्ड होता है. टेस्ट प्रोसीजर स्पेसिफाइज हाउ टू परफॉर्म वन और सेवरल टेस्ट केसेस आर पार्ट ऑफ देम. So the test procedure is that how do we apply the test cases in several part of the system. Test plan describe the testing strategies, resources and schedule. Test plan comprises of कौन कौन सी टेस्टिंग टेक्निक्स हम इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे एंड व्हाट इज द शेड्यूल, किस शेड्यूल के अंदर जो है हमें ये चीज़ें कंप्लीट करके जो है वो सबमिट करनी है. टेस्ट एवोल्यूशन, द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्टिंग एफर्ट्स means how the results have been evaluated that are collected by the test cases. Test component automates one or several test procedures or parts of them, sometimes called test drivers, test harness और test scripts. मुख्तलिफ टेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ऑटोमेटेड, जो कि सेवरल टेस्ट प्रोसीजर्स को ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं. और डिफेक्ट जो है वो सिस्टम अनोमली, जिसको हम बग कहा जाता है. तो एरर और बग जो है उसमें दोनों में फ़र्क है. एरर जो है उसको कहा जाता है कि आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो आपको एरर जनरेट करके देता है कि यार इसमें सिंटैक्स एरर है, कॉमा यहाँ पर रह गया है, या सेमीकोलन का मसला है, या इन्वर्टेड कॉमास है. डिफेक्ट जो होता है जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो उस वक्त भी आपको उसके प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम नहीं पता चलता. जब आप इस एग्जीक्यूट करके उसको इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे कोई कहीं पर रिजल्ट सही प्रोवाइड नहीं करता तो वहाँ पे आपको बताइए यार इसको रिज़ल्ट तो ये देना चाहिए लेकिन ये दे नहीं रहा. फॉर एग्जांपल आपने जो है वो दो नंबर्स का सम का C++ प्रोग्राम बनाया, ठीक है, लेकिन प्लस की जगह आपने माइनस लिख दिया. तो जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके दो इनपुट दोगे तो जब आप दो नंबर्स दोगे तो वो प्लस की जगह माइनस वाला रिजल्ट देगा. हालांकि प्रोग्राम की कंपाइल में और एरर में
कंपाइलेशन में, एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, आपका प्रोग्राम सही से चल रहा है। लेकिन जब वो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों को ऐड करने के बजाय माइनस दे रहा है। मीन्स आपसे जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर बग है, सिस्टम अनोमली, जो इस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए वो बिहेव नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस नो इशू। अब वो बग जो है इसको फाइंड आउट करना होता है, जिसको कहा जाता है डिफेक्ट या बग, जो कि फाइंड आउट करना मुश्किल होता है काफ़ी मरतबा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि मसला क्या है। टेस्ट टीम, हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द software testing? Testers that devise the test plans, design, organize and run test. Analysts, who are the analysts? Assist testers, उन testers को assist करना, provide guidance for the process of verification as well as the appearance of the test results. And the designers assist testers, provide guidance for testing components and software architectures, एंड यूज़र्स हु विल प्रोवाइड फीडबैक फॉर द डेवलपमेंट टीम। तो सारे एनालिस्ट, आपके डिज़ाइनर्स और यूज़र्स जो हैं वो आपके टेस्टिंग टीम का जो है वो उसकी हेल्प आउट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं ये टेस्टिंग कंपोनेंट किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ताकि वो टेस्टर्स को मेक देम अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम का फंक्शन जो है वो इस तरह से होना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि वो सिस्टम को टेस्ट करें तो क्या क्या चीज़ें जो है वो टेस्ट करें। काजेस ऑफ सॉफ्टवेयर फेल्यूर्स, अब सॉफ्टवेयर जो उसकी फॉल्ट्स हैं या उसके फेल्यूर्स हैं, उसके काजेस क्या हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस का जो फेज़ है उसमें क्या होता है, हम इनकरेक्ट, मिसिंग और अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, सही से हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग नहीं की, कन्फ्यूजन है उनमें, एम्बिग्यूटी है, कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ओवरलैप कर रही हैं आपस में, उसकी वजह से फॉल्ट आ सकते हैं। सिस्टम डिज़ाइन, इनकरेक्ट और अनक्लियर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, जब रिक्वायरमेंट्स आपकी सही नहीं होंगी तो आपका डिज़ाइन भी सही नहीं होगा। ये मीन अगर आपका रिक्वायरमेंट्स सही है लेकिन डिज़ाइनर, सिस्टम डिज़ाइन करने वालों ने डिज़ाइन सही नहीं किया, उसकी स्पेसिफिकेशन सही डिज़ाइन नहीं की, इट विल क्लियर अनक्लियर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे। प्रोग्राम डिज़ाइन, इनकरेक्ट और अनक्लियर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो सही से समझ में नहीं आया। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इनकरेक्ट सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, उसकी सिंटैक्स एरर में आ रहा है, उसमें वहाँ पे सिमेंटिक्स जो है उसकी जो मतलब है वो सही से नहीं जो है वो उसको बिहेव कर रहा। अच्छा, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का जो डिफरेंस है यही है कि सिंटैक्स क्या होता है, आपका ग्रामेटिकल एरर होता है, जिस तरह C++ की प्रोग्रामिंग है, इफ़ यू फॉरगॉट टू राइट द सेमीकोलन तो उसमें जब एरर आएगा उसको सिंटैक्स कहा जाएगा। सिमेंटिक एरर है जब आप प्लस की जगह आपने माइनस लिख दिया तो प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन उसका मतलब सही नहीं आ रहा। सिमेंटिक का मतलब है कि वो बिहेवियर उसका सही नहीं आ रहा। दैट इज द इशू कि आपका इनकरेक्ट सिंटैक्स है या इनकरेक्ट सिमेंटिक है। यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, इनकम्प्लीट टेस्ट प्रोसीजर्स है, न्यू फॉल्ट्स इंट्रोड्यूस व्हेन ओल्ड वंस आर करेक्टेड। कि टेस्ट प्रोसीजर्स इनकम्प्लीट है, न्यू फॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं जबकि ओल्ड भी अभी करेक्ट हो चुके हैं। जब हमने पुराने ठीक किए तो नए जो वो जनरेट हो गए, ठीक है। इनकम्प्लीट टेस्ट प्रोसीजर होता है ना कि एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के अंदर एक मसला ठीक किया तो दूसरा मसला आना शुरू हो जाता है। सिस्टम टेस्टिंग, इनकम्प्लीट टेस्ट प्रोसीजर, पूरे टेस्ट प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं है। मेंटेनेंस, इनकरेक्ट यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, पुअर ह्यूमन फैक्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सही नहीं है, ह्यूमन फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व सकते हैं। न्यू फॉल्ट्स इंट्रोड्यूस्ड व्हेन ओल्ड वंस आर करेक्टेड, न्यू फॉल्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मेंटेनेंस के दौरान। चेंजिंग इन द रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनेंस के दौरान यूज़र आपको कहे यार ये मुझे इस तरह से जो ये इस्तेमाल हो रहा है इस तरह से ठीक नहीं हो रहा, प्लीज़ इसको इस तरह से चेंज करने दें मेंटेनेंस के टाइम पे। तो फिर आप वो मेंटेनेंस में वो चेंज करने के लिए जाते हैं तो आपको दोबारा मसले आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है गाइस। सिस्टम टेस्टिंग प्रोसीजर्स, सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है आपके जो है वो फंक्शनल टेस्ट है आपके पास, परफॉर्मेंस टेस्ट है, एक्सेप्टेंस टेस्ट है, इंस्टॉलेशन टेस्ट है। तो इंटीग्रेटेड मॉडल के पास सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके यहाँ पे फंक्शन टेस्ट होगा, अदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट होगी, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के हवाले से कि कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है सही से नहीं कर रहा, यूज़र इन्वायरमेंट कि हाँ वो सही से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। System testing involves unit and integration testing. Objective is to make sure that the program code implements the design correctly, and system testing objective is to ensure that the software does what the system wants it to do.
तो यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है कि मेक श्योर दैट द प्रोग्राम कोड इम्प्लीमेंट्स द डिज़ाइन करेक्टली एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर डज जो कस्टमर चाहता हो। यूनिट टेस्टिंग इज डन नॉर्मली बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट्स हिमसेल्फ जो कि प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, और इसका फेमस एक टूल है जावा का जो कि जे यूनिट कहा जाता है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के ऑटोमेटेड टूल भी अवेलेबल हैं जिसको यूनिट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है उसको कहा जाता है जिसको सारे जो इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी में मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट करके जो है वो सिस्टम को आपस में इंटरफेस किए जाए। अबाउट द so let's talk about the regression testing. Regression testing is to check for the defects propagated to other modules by changes made to the existing program. यानी कि जो डिफेक्ट्स हो जो प्रोपोगेट हो रहे हैं दूसरे मॉडल्स में, जो कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स को हमें चेंज करने से जो डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं दूसरे मॉडल्स में, we need to find out those in the regression testing. Representative sample of existing test cases is used to exercise all software functions. Additional test cases focusing software functions likely to be affected by the changes. The test cases that focus on changed software component. The primary objective of this testing is to ensure that के सारे जो modules हैं they should stay bug free. Features should stay bug free. Bugs which been fixed once should not turn up again in subsequent program versions. कि जो प्रोग्राम बग हम फिक्स कर चुके हैं ऐसा ना हो अगले जो वर्जन जो आफ्टर करेक्टेड वर्जन होगा उसमें दोबारा से जो है बग्स जो है वो रिपीट हो जाए। स्ट्रेस टेस्टिंग टेस्ट द सिस्टम अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द नॉर्मल यूज के ऊपर किसी के ऊपर टेस्ट स्ट्रेस आ रहा हो। जिस तरह से आपके पास अगर कहें कि भाई आपकी कल टेस्ट है, कल आपके पास इस सब्जेक्ट का भी टेस्ट है, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर का भी टेस्ट है, आपके पास जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी टेस्ट है, आपके पास जो मैथमेटिक्स का भी टेस्ट है, तो ये आपके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया। यार कल 3 टेस्ट हो रहे हैं, दोनों के लिए जो है वो हमें तीनों के लिए प्रिपेयर होना है। लेकिन अगर कहा कि आपके 2 दिन के बाद एक टेस्ट है तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं हुआ। क्रिएट टेस्ट केसेस दैट डिमांड रिसोर्सेज इन एबनॉर्मल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसकी जो जिसमें कहते हैं ना कि आप इंटरनेट जब कहते हैं ना स्पीड टेस्टिंग, तो इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग में क्या होता है कि वो डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो मेजर डेटा स्ट्रीम जो है वो चेक करके देखता है, फिर आपको बताता है कि इंटरनेट की आपकी स्पीड कितनी है। या सीपीयू यूजेज के हवाले से आपको जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं कि आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, आपका मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है मैक्सिमम। तो वो जो है कि स्ट्रेस टेस्टिंग में मैक्सिमम कितना जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है, जिसमें मेमोरी कंडीशंस हो सकती हैं, डिस्क फॉल्ट हो सकती हैं, नेटवर्क फॉल्ट्स हैं, यूजुअली हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, अगर बैंकिंग है तो इतने नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ टाइम वो करवाते हैं, चेक कर सकें अगर इतनी ट्रांजेक्शन फ्यूचर में हो तो क्या हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। Usually large requests or files, usually high data rates. What happens if the network suddenly becomes 10 times faster? ठीक है। Usability testing is the user interface intuitive, means whether the user interface is easy to use, it is organized, it is logical, कि यूज़र को इस्तेमाल करने में मुश्किलात ना आती हो। Does it frustrate user? ऐसा ना हो कि यूज़र उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि डेटा को एंटर करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और अगर बीच में हमारा प्रोसेस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं कि दोबारा से अगर हम लॉगिन करके इस वेबसाइट पे चेक करें तो हमारा प्रीवियस जो डेटा स्क्रीन में एंटर किया वो गायब हो गया, तो वो फ्रस्ट्रेट करेगा यूज़र को। सो उससे बेहतर है कि जब डेटा वो फर्स्ट स्क्रीन से सेव करके दूसरी स्क्रीन पर जाए तो डेटा वहाँ पर सेव ही रहे, चाहे इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा से वो लॉगिन हो। आर कॉमन टास्क सिंपल टू डू? अगर कॉमन टास्क सिंपल है, डज इट कंफर्म टू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कन्वेंशंस, जो कि अगर आपका एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसके हिसाब से स्क्रीन पे पूरी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, iOS है या विंडोज़ है, लिनक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेट रियल यूजर्स टू सिट डाउन एंड यूज द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग, परफॉर्म सम टेस्ट। यूजेबिलिटी यूज़र टेस्ट करता है, तो बेहतर है कि रियल यूजर्स को बिठा के उनसे फीडबैक लिया जाए जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। वॉच देम परफॉर्मिंग द टास्क, नोटिंग थिंग्स दैट सीम टू गिव देम ट्रबल, तो आप उनको देखेंगे वो टास्क परफॉर्म करें और नोट करें चीज़ें जो उनको जो है परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग, एनी सिस्टम दैट मैनेजेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और परफॉर्म सेंसिटिव फंक्शंस में बिकम अ टारगेट फॉर इंट्रूजन। तो एनी सिस्टम जो कि दैट इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ जिसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉज हैं उसके बुलाते हम चेक करेंगे। हाउ फिजिबल इज इट टू ब्रेक इनटू द सिस्टम,
कि यह सही से जो है कितना आसान है उसको हैक करना। लर्न द टेक्निक यूज्ड बाय द हैकर, जो हैकर जिस तरह के टेक्निक यूज़ करते हैं तो उन टेक्निक्स को स्टडी करना और चेक करना कि भाई क्या वही टेक्निक्स आपके सिस्टम में अगर अप्लाई हो तो हैक हो सकता है कि सिस्टम जो है वो या नहीं हो सकता। ट्राई वट एवर अटैक्स यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आपको पता हो, जो भी आपके नोटेड हो उसको अप्लाई करें। हायर अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट टू ब्रेक इनटू द सिस्टम, तो आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं जो कि इस सिस्टम को ब्रेक करने की जो है वो कोशिश कर सकता है और चेक कर सकता है कि क्या वो हैक कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जिस तरह से जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं वो अपने सिस्टम्स के लिए हैकर्स को बुलाते हैं, बड़े बड़े सिस्टम को, ताकि उनको चेक करवाएं कि यार वो हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। कन्फिगरेशन टेस्टिंग, टेस्ट ऑन ऑल रिक्वायर्ड हार्डवेयर कन्फिगरेशन, CPU, मेमोरी, डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड एक्सेट्रा, क्या वो सही से इन चीज़ों पे चल सकता है कि नहीं चल सकता। टेस्ट ऑन ऑल रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्जन्स, कौन सी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे वर्जन्स पे चल सकता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा PCs नहीं है तो आप VMware या वर्चुअल PC वगैरह जो है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। VMware जो है पेड है, वर्चुअल PC जावा वालों का है, वो फ्री है। आप उसको इंस्टॉल करके विंडोज़ के ऊपर अंदर आप लिनक्स चला सकते हो, आप लिनक्स के अंदर आप विंडोज़ चला सकते हो। मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप एक ही इन्वायरमेंट में बैठ के रन कर सकते हो। Compatibility testing. Compatibility testing is to test to make sure the program is compatible with other program it is supposed to work with. फॉर एग्जाम्पल आपके जो नया वर्जन और प्रीवियस वर्जन के फाइल को लोड कर सकता है कि नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कैन वर्ड 12.0 लोड फाइल क्रिएटेड विद वर्ड 11.0, तो वो कंपेटेबल होगा कि नहीं, प्रीवियसली डेवलप या राइटिंग जो डॉक्यूमेंट है उससे कंपेटेबल है कि नहीं। एग्जाम्पल सेव एज वर्ड, वर्ड परफेक्ट, PDF, HTML, प्लेन टेक्स्ट, इन सारे फॉर्मेट्स में सेव करके देखें वो फॉर्मेट्स में सेव करता है कि नहीं करता। द प्रोग्राम इज़ कंपेटेबल विद इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स, के वो इस फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे विंडोज़ हैं उनमें चल सकता है कि नहीं चल सकता। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, टेस्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योर देयर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इंस्ट्रक्शंस आर समटाइम्स नॉट अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द यूज़र इंटरफेस, तो जितनी भी जो है आप अपडेट्स होती हुई जा रही हो उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हुए जाएं। टेस्ट यूज़र डॉक्यूमेंटेशन ऑन रियल यूजर्स टू इंश्योर इट इज़ क्लियर एंड कंप्लीट, तो अब फिर वो डॉक्यूमेंटेशन रियल यूजर्स को दें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको रीड करें और सिस्टम को यूज़ करें। वेदर यूजर्स आर एबल टू यूज़ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन और ना, अगर नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ टारगेट सिस्टम एंड टेस्टेड विथ वेरियस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर जो है वो डिप्लॉय होता है जब टेस्टिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या क्लाइंट के जो है वो एनवायरनमेंट में, ताकि वो चेक कर सकें कि वो सही से रन हो रहा है कि नहीं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन उसके साथ जो है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी कंपोनेंट डेटाबेस सर्वर्स और वेब सर्वर के साथ जो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिडेंट सॉफ्टवेयर जो वहाँ पे हैं वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली यानी कॉन्फ़िगर तो नहीं हो रहा। सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फंक्शन टेस्टिंग, सिस्टम मस्ट परफॉर्म फंक्शन स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट, जिसको बिहेवियरल टेस्टिंग कहा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की उस हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई सिक्योरिटी, प्रिसिशन, लोड एंड स्पीड कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट्स, कि सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, उसकी प्रिसिशन के वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, लोड कितनी देर में हो रहा है, उसकी स्पीड कंस्ट्रेंट्स कितने, रिस्पॉन्स कितने में कर रहा है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कस्टमर्स ट्राई द सिस्टम टू मेक श्योर दैट सिस्टम बिल्ट इज सिस्टम दे रिक्वेस्टेड। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मीन्स जब कस्टमर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ भाई इस तरह का ही सिस्टम चाहते थे, जो सिस्टम बनवाना चाहते थे जो आपने बना के दिया। एंड डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड एंड टेस्टेड इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। लोड स्ट्रेस टेस्टिंग, वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर्स रिक्वेस्ट जो है, जिसमें वॉल्यूम टेस्टिंग होगी, लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डेटा उसमें स्टोर होगा, रिट्रीव होगा, सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, एक्सेस डेटा को ऑथेंटिकेशन एंड डेटा सेफ्टी के वाले दे, टाइमिंग टेस्टिंग होगी कि इवेंट ड्रिवन पे, कंट्रोल पे रिस्पॉन्स किस तरह से करता है, ट्रिगर होता है कि नहीं होता। क्वालिटी प्रिसीजन टेस्टिंग, वेरीफाई द रिजल्ट एक्यूरेसी, कि रिजल्ट जो प्रोवाइड कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिकवरी टेस्टिंग, इफ सिस्टम फेल्स तो क्या वो रिकवर कितना जल्दी होता है, कितना डेटा लॉस होता है। Acceptance testing, the purpose is to enable customers and users to determine if the system built really meets their needs and expectations.
जिस तरह मैंने भी कहा कि यूज़र्स के हिसाब से जो है वो सही कर रहा है काम, सही से डिज़ाइन हुआ है प्रोडक्ट के नहीं, जिसमें बेंच मार्किंग इस्तेमाल की जाती है। प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ टेस्ट केसेस करस्पॉन्डिंग टू टिपिकल यूजेज कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द सिस्टम। बेंच मार्किंग कहा जाता है कि सिस्टम को बनाने से पहले एक ऑलरेडी हम सोच लें कि ये चीज़ें जो है परफॉर्म करेगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई ठीक है, ये सिस्टम ठीक है। तो वो जो बेंच मार्किंग टेस्ट केसेस है वो जो है बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। पायलट टेस्टिंग यूजर्स एम्प्लॉय द सॉफ्टवेयर एज अ स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट और इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। पायलट टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर उठा के यूजर्स के एनवायरनमेंट पूरे का पूरा डिप्लॉय नहीं किया जाता, एक छोटे लेवल पे छोटे यूजर्स के लिए डिप्लॉय किया जाता है और वो पहले यूज़ करते हैं, पूरी कंपनी में नहीं डिप्लॉय होता, जिसको कहते हैं पायलट टेस्टिंग। तो जब वो फीडबैक देंगे हाँ अब सिस्टम ठीक है, तो फिर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइज इसको जो है टेस्ट किया जाएगा। अल्फा टेस्टिंग इज रिलेटेड प्री रिलीज और क्लोज इन हाउस यूज़र टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वाली जो कंपनी है वो जो जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं जाके इस्तेमाल करो। जिस तरह गूगल ग्लास जब डिज़ाइन हुआ, गूगल ग्लास पहले अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे गूगल ग्लास, जाके उस चीज़ को इस्तेमाल करो अपने ही जो कंपनी के अंदर, उसको कहा जाता है अल्फा टेस्टिंग। फिर कहा जाता है बीटा टेस्टिंग, प्री रिलीज पब्लिक यूज़र टेस्टिंग। यानी कि बीटा टेस्टिंग मीन्स उस सॉफ्टवेयर को यूज़र्स के लिए फ्री जो है वो डिलीवर की जाता है पूरी दुनिया में, ताकि वो लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ होती हैं उसको चेक करें और अपना फीडबैक प्रोवाइड करें। तो वो यूज़र्स जो हैं दुनिया के वो टेस्ट करते हैं और अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। फिर जो है वो चीज़ उसमें बग्स और एरर्स जो आते हैं वो रिमूव होते हैं और उसके बाद जो स्टेबल रिलीज़ आती है। अब स्टेबल रिलीज़ में भी एक है कि पैरेलल टेस्टिंग होती है कि ओल्ड एंड न्यू सॉफ्टवेयर आर यूज टुगेदर एंड ओल्ड सॉफ्टवेयर इज ग्रेजुअली फेस्ड आउट। कि जब नया सॉफ्टवेयर हम डिप्लॉय करने के लिए जाएँ तो पुराना सॉफ्टवेयर जिस तरह से चल रहा है तो एकदम से उसको उठा के नहीं फेंक देंगे और नए सॉफ्टवेयर नहीं प्लेस आउट कर देंगे, बल्कि इनिशियली फॉर सम टाइम वी रन बोथ ऑफ द सॉफ्टवेयर टुगेदर। जब इट विल बी कंफर्म कि नया सॉफ्टवेयर सही बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो फिर ऐसा ऐसा पुराना सॉफ्टवेयर जो ऐसा ऐसा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अनकवर्स रिक्वायरमेंट discrepancies means the problems as well as helps users to find out what they really want, hopefully not at the developer's expense। कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज रिक्वायरिंग के रिक्वायरमेंट डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट की जाए टू हेल्प द यूजर्स के टू मेक देम अंडरस्टैंड को क्या चाहिए था। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, सेफ मीन्स फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट और लॉस। अ हैजर्ड स्टेट दैट टुगेदर विद द राइट कंडीशन कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे टूल्स वगैरह जो कि आपकी एविएशन इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, एरोप्लेन्स में, स्पेस रॉकेट्स के अंदर, आपकी जो है वो या व्हीकल्स के अंदर, उनको टेस्ट किया जाएगा हैज़र्ड के हवाले से। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग वो फेल हो जाएं, कोई मसला हो जाए, तो उसके लिए जो वो हैज़र्ड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे बड़ा लॉस हो सकता है। फेलियर मोड एसोसिएशन दैट कैन लीड टू हैज़र्ड, को उनका फेल हो जाए तो वो एक हैज़र्ड सिचुएशन की तरफ लेके जा सकते हैं। वी कैन बिल्ड अ फॉल्ट ट्री टू ट्रेस डाउन फेलियर मोड्स टू अननोन इफेक्ट्स और हैज़र्ड्स। तो फॉल्ट ट्री हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से फेलियर्स हैं हो सकते हैं मुख्तलिफ इस टूल्स के अंदर, ताकि उनको प्रिवेंट किया जाए, ताकि हैज़र्ड सिचुएशन जो है वो अवॉइड की जाए। सेफ्टिकल सिस्टम इश्यूज, रिमेंबर मर्फीज लॉ, इफ़ अ फॉल्ट कैन अकर इट विल। अगर हम देखते हैं ना कि भाई जब हमें पता कि यार ये मसला हो ना जाए तो वो मसला हो ही जाता है। जिस तरह एग्ज़ाम आते हैं तो हम कहते हैं यार खुदा न खास्ता बीमार ना पड़ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, या प्रोजेक्ट का काम करना होता है तो प्रोजेक्ट का काम ना करें तो जो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। मेरे साथ अक्सर यूनिवर्सिटी के दौर में होता था कि जब प्रोजेक्ट का काम करना होता था तो कंप्यूटर ख़राब हो जाता था, जब जो है पेपर आते थे तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती थी। सो इफ़ अ फॉल्ट कैन अकर, अगर फॉल्ट हम समझते हैं ये हो सकता है तो वो ज़रूर होगा। इफ़ यूज़र कैन मेक अ मिस्टेक ही विल, अगर यूज़र इस तरह की मिस्टेक कर सकता है तो वो ज़रूर करेगा। लीस्ट प्रोबेबल फॉल्ट कॉजेज आर नॉट 100% रिलायबल सिस्टम इज़ नॉट नेसेसरली सेफ और सिक्योर। 100% रिलायबल सिस्टम हम बना भी नहीं सकते और ना ही वो नेसेसरली सिक्योर भी हो और सेफ भी हो। बजट विथ टेस्टिंग इन माइंड, कि टेस्टिंग के हवाले से भी जो है वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि बजट टेस्टिंग वगैरह करते हैं। एंड so guys let's talk about hazard and operability studies. HAZOPs involve structured analysis to anticipate
system hazards and to suggest means to avoid or deal with them. During testing, we must select test cases to exercise each failure mode to make sure that the system reacts in a safe manner. So that we need to test our system in order to prevent the system from being failed or crash. Otherwise, it will create a hazard situation. The another testing method, which is clean room testing. This method is derived from IBA, which is developed for high quality software with a high productivity team. And there are two principles of clean room. Software must be certified with respect to specification rather than tested, यानी कि स्पेसिफिकेशन जो कि यूज़र्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स गैदर के हमने बनाई हुई है तो उसके हिसाब से सर्टिफाई करना है. एंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी ज़ीरो फॉल्ट, यानी कि उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए. The clean room process consists of several steps as software is specified as a black box, then defined as a state box, then defined as a clear box. तीन तरह की स्टेज जो होती हैं, ब्लैक बॉक्स, स्टेट बॉक्स एंड क्लियर बॉक्स. द बॉक्स स्ट्रक्चर encourages analysts to find flaws and omissions early in the project life cycle when it is cheaper and faster to fix them. So it is easy to fix the bugs if they are in the early stages of life cycle rather than to fix the bugs when the system in the production stage. The clear box specification is converted into an intended function using natural language or a mathematical notation. For each function, a correctness theorem is devised and proven. Unit testing is not necessary or even permitted. Errors found by statistical testing tends to be simple and mistakes. अब IBM क्लेम करता है एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉल्ट रिडक्शन जो है वो फॉल्ट्स पर 1000 लाइन्स ऑफ कोड जो है, यानी कि 3 फॉल्ट जो हैं एटलीस्ट 1000 लाइन्स ऑफ कोड में जो है वो जनरेट होते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल इनटू द क्लीन रूम प्रोसेस. इट इज़ नॉट वेरी वेल टेस्टिंग टेक्निक. Sources and version control, open source CVS flavors, Microsoft Visual Studio एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो TFS टीम फाउंडेशन सिस्टम वगैरह या CVS फ्लेवर्स, CVS फाइल्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है. इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ एक सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ वर्जन्स को या सोर्स कोड को जो हम मैनेज कर सकें. सो ईच वर्जन इज स्टोर्ड सेपरेटली. हर सॉफ्टवेयर का जो वर्जन जो मॉडिफाई करते हुए जाएंगे, एडिशंस करते हुए जाएंगे, उसको सेपरेट रख सकते हैं. डेल्टा चेंजेस, डेल्टा का मतलब हुआ एडिशनल चेंज, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज होगा तो वो हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं कि भाई ये वर्जन है, इसके अंदर ये डेल्टा चेंज कि ये थोड़ा सा जो है हम लगा के जो है वो करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, ये डेल्टा चेंज एक लगाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी. बेसिकली डेल्टा क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक प्लगेबल कंपोनेंट होता है. कैसे कि जैसे कि आपको एक खिलौना मिल जाए या आपको लीगोज मिल जाए, तो लीगोज में एक बेसिक आप बनाएं, लेकिन उसमें दूसरे डेल्टास में ऐड करके आप जो चाहें आप एरोप्लेन बनाएं या जो है आप ट्रेन बनाएं या मुख्तलिफ फिगर्स बनाएं, तो लीगो में आपके क्या होता है, डेल्टा मॉडल्स होते हैं जो कि आप ऐड करके सकते. इस तरह में भी ये है कि आप डेल्टा मॉडल्स होते हैं जो मुख्तलिफ वर्जन के साथ आप अटैच करके जो है वो नया वर्जन जनरेट कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन कमेंट्स होते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू वेदर व्हेन द सिस्टम इज़ मॉडिफाइड देयर शुड बी द कमेंट्स बाय ईच डेवलपर दैट इज़ डेवलपिंग और मॉडिफाइंग द प्रोग्राम. रिवीजन हिस्ट्री इंक्लूडिंग यूज़र्स, कितना रिवीजन हो चुका है उसका और जो यूज़र जो जिन्होंने रिवाइज किया इस चीज़ को. डू नॉट यूज़ कंडीशनल कंपाइलेशन फॉर टास्क अदर देन डीबगिंग, ट्रेसिंग और चेक्ड बिल्ड्स, कि आप थोड़ा थोड़ा जो है अपने हिसाब से उसका कंडीशनल कंपाइलेशन ना करें, रादर देन कि जब आपको फॉल्ट्स हो या बग्स उनको डीबग करना हो या उनको ट्रेस करना हो, जब आप भी आप कंपाइल करें तो कंप्लीट सिस्टम को उसको जो है वो कंपाइल करें. अदरवाइज़ आपको एरर्स हो उसका जो है पता नहीं चलेगा. There is another method which is called automated testing. Automated testing tools are available. सिलिकॉन वगैरह जो है हैं और एक दो और भी टूल्स हैं जो कि आप जिसके थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. टेस्ट ऑटोमेशन हैज़ टू बी लर्नड. टेस्टिंग टूल्स आर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर द टेस्टिंग स्टाफ. वो टूल्स अवेलेबल हैं लेकिन वो टेस्टिंग स्टाफ की रिप्लेसमेंट नहीं है. नॉट एवरीथिंग कैन बी टेस्टेड इवन विद ऑटोमेशन टूल्स. हर चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते. Automated tools must be continuously updated and automated tools cost time and money क्योंकि वो they are expensive to purchase and we need specialized people who knows how to use the automated testing tools in order to use them. So guys, this is the end of our lecture of the software testing, which is part of the software quality assurance. Hope that now the concepts are for software testing are clear. There are several other software testing methodologies, the testing strategies are available depending on the usage of the software houses के कौन कौन सी वो इस्तेमाल करते हैं, depending on the nature of the project as well.
So we cannot cover all of them, but we covered most of them. So guys, thank you, and inshallah the next lecture we will be covering about the project management. Take care. Allah Hafiz.